Hello student, welcome to Law School. I am Shalini Singh and today we will going to discuss law of evidence. So जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी थ्योरी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए खास कर ये लेक्चर्स है. So before we start, let's discuss topics. First, what do you mean by the law of evidence? Second, trace briefly the history of law of evidence in India. Third, Evidence Act is exhausted in itself or not. Fourth, what is the object behind the law of evidence? So, अगर आप लोग अपने थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर्स जो है बहुत काम आने वाले हैं. हम इन लेक्चर्स के अंदर सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे जो आपके एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल रहे. सो बिफोर वी स्टार्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जिससे कि आपको टाइम पर वीडियोस की अपडेट्स मिल जाए. मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस. द वर्ड एविडेंस इज derived from the Latin word evident or evider, which means to show clearly, to discover clearly, to ascertain, to prove. So evidence word जो है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड से जिसका मतलब एविडेंट और एविडर होता है. इसका सिंपल वे में मतलब होता है टू शो क्लियरली, to discover clearly, to ascertain or to prove. The law of evidence is based on the following two basic axioms. Number one, facts other than those having some connection with the matter in controversy should be gone into by the court. Second point, all facts having rational probative value are admissible in evidence unless excluded by some rules of paramount importance. मीन्स वही फैक्ट्स लिए जाएंगे जिनके अंदर प्रोबेटिव रैशनल प्रोबेटिव वैल्यूज मिलेंगी, उन्हीं को ही एडमिट किया जाएगा एज एविडेंस इन द कोर्ट. और एक्सक्लूड किन को किया जाएगा, तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. अ कन्फेशन मेड बाय अ क्लाइंट टू हिज एडवोकेट. अगर एडवोकेट के सामने कोई क्लाइंट कन्फेशन करता है तो उसे इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाएगा. पहले के टाइम पर ट्रायल्स के अंदर बहुत सारे इरेशनल मेथड्स यूज किया करते थे जैसे कि हॉट आयरन, बॉइलिंग वाटर मेथड, कॉप्स टचिंग मेथड जिसके अंदर कॉप्स वर सपोज टू रिएक्ट इन सर्वल वेज, ओपनिंग एन आई, पॉइंटिंग अ फिंगर, ओजिंग ब्लड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज भी एक हॉरिबल मेथड प्रैक्टिस किया जाता है टॉर्चर के लिए जिससे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं जिसे हम थर्ड डिग्री मेथड बोलते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आज भी ये मेथड्स यूज किए जाते हैं. सो ये सारे इरेशनल मेथड्स थे जो यूज किए जाते थे पहले ट्रायल्स के अंदर. इन्हीं को हटाने के लिए एविडेंस के अंदर ये बेसिक एक्सियम्स बनाए गए लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर. हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस. बिफोर इंडियन Evidence Act was passed, there was no comprehensive or systematic enactment in India on this subject. Presidency, town of Calcutta, Bombay, Madras, English rules of evidence were followed. The Moffitt Court applied rules which were both vague and indefinite. There are no definite or fixed rules. The first step was taken in 1835 when an act was passed on the subjects and was made applicable to all courts in British India. In 1855, another act was passed on the subject. Indian law of evidence could be divided into three portions. One, settled by express enactments, another settled by judicial decisions, and third, and the largest portion, which was unsettled and which remained to be classified under either of the other two portions. Decided to enact some formal legislation on this subject. 1868, a draft bill on the subject was prepared and circulated to the local government. The bill did not see the light of the day and was discarded after its first reading in the legislature. So उसका रीजन जो दिया गया था unanimously वो ये कहा गया था कि bill was not suitable to the needs of the country. तो इस बेसिस पे उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर 167 सेक्शन है, ये आपको बात ध्यान में. वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टेड और नॉट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है. तो चलिए देखते हैं. द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टेड
Interpretation of the section of the Act. The courts can look to the relevant English common law. The courts cannot import any principle of English law relating to evidence which is inconsistent. So कोर्ट कोई भी ऐसा प्रिंसिपल इंपोर्ट नहीं किया है इंग्लिश लॉ से जो कि इनकंसिस्टेंट बनाता हो. सो अगर आपसे पूछा जाता है वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टेड और नॉट, सो आपका आंसर होगा द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टेड. तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द लॉ ऑफ एविडेंस. To help the courts to ascertain the truth, to prevent protected injuries and to avoid confusion in the mind of judges. So ये सारे रीजन थे लॉ ऑफ एविडेंस के ऑब्जेक्ट के पीछे. जो मेन रीजन था ऑब्जेक्ट का लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर, टू रेस्ट्रिक्ट द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय कोर्ट्स विद इन द बाउंड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय जर्नल कन्वीनियंस. सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट थे जिनको आपको ध्यान में रखना है. Study of the Act will show that there are three main principles. What are these? Number one, evidence must be confined to the matters in issue. Evidence must be confined to the matters in issue. Second, hearsay evidence must be not admitted. Hearsay evidence सुने सुनाई बातों को नहीं एडमिट किया जाएगा क्योंकि उनमें फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंसी प्रूफ करने के लिए काम नहीं आते हैं. दे आर नॉट वर्थी, सो इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. थर्ड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस. सो जो बेस्ट एविडेंस होंगे वही केस के अंदर दिए जाएंगे. सो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल थे. फर्स्ट, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन इशू. सेकेंड, hearsay एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड. थर्ड, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस. So what is evidence? What do you mean by evidence? Evidence means, according to section 3, all statements which the courts permits or require to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. So जो भी statement witness से ली जाती हैं orally, उन्हें हम oral evidence statement के अंदर count करते हैं. Second, all documents produced for the inspection of the court and such documents are called documentary evidence. So जो भी document present किए जाते हैं कोर्ट के अंदर उनको कोर्ट इंस्पेक्शन करता है ताकि उनसे फैक्ट्स को जान सके और उन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर काउंट किया जाता है. आपका सवाल है, opinions of experts are relevant. Option A, under section 45 of Evidence Act. Option B, under section 46 of Evidence Act. Option C, under section 47 of Evidence Act. Option D, under section 48 of Evidence Act. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा. सो आपको इसको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और आपको इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिया जाएगा. सो आपको हर लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है.